Hi, Ashika. Hi, hello. How are you? I'm good. And you? Uh, so, Mhm. very happy to have you. Okay. And Mhm. I will introduce the live and you, and Okay. we will, start the conversation. Okay. Mhm. Okay. Welcome, Yeah. everybody. Ritash, one of the co founders of Rang here. Rang, all may know, is an intersectional grassroots queer collective, pan India. We are unfunded and very small, growing, okay, and hosting, Insta lives which are multilingual from queer, trans people, intersectional ones, especially from across the world, is as some of my friends say, it's become a passion and almost an obsession. Um, Mm. but we've seen lots of um, fantastic feedback offline and online, and value added in this because these are all live, you know first person multilingual conversations, Mhm. sectional queer trans people, and especially with due respects, we are not after any celebrities, yeah, okay, because for us every queer trans life, especially intersectional, are as precious and vital and joyful, by through these freewheeling conversations. These are not interviews, these are Yeah. not know, Mhm. something, but just stories and Mhm. talk the heart. Okay. Yeah. uh, Mhm. uh, in that context, we are very delighted and honored to have Yashika, a young trans woman, who is currently in Punjab but originally from UP. She's a master's student. Sorry, you have finished your master's, right? Yeah. Yes. Yes. Mhm. And she's done it in a very specific but a very important and a very fundamental discipline of human rights. uh, Exactly. and it's very rare to have a PG in that. But for us, human rights are not just about studying but actually practicing, because queer trans people, uh, you know, uh, are regularly, despite all the laws and provisions and Mhm. all defamative action, are in reality, just very, very, what do I call it? Not just alone discriminated, we are ostracized, we are shamed just for being who we are. And Mhm. done this very unique and very brave and very important thing of uh, getting certain basic rules and regulations changed at Punjab University, right? Yeah. From many of us face discrimination, and still for many of us even are struggling to Mhm. navigate life from day to day. We not even live life, we have to negotiate and navigate, people, society, relationships, time, whatever you call it, and that itself Exactly. achievement. Mhm. But has gone, like so many queer trans people, kind of blazed a trail for many, by just kind of refusing to accept some discriminatory rules and regulations. And Mhm. that is so inspiring, very important, uh,
And yeah, so we will hear more from Yashika about it. Uh, Hmm. Again, welcome, Yashika. Honored to have you here. And, Thank you so much. uh, Mhm. and we will have this conversation in English and Hindi. But अगर थोड़ा बहुत आप पंजाबी में बोलना चाहेंगे, उर्दू में बोलना चाहेंगे, Hmm. तो Hmm. and similarly, anybody who has questions or comments, except for our co-hosting partners who are also grassroots unfunded intersectional queer collectives. One is Nestam based in Andhra, and the other is Hmm. based in Telangana. Life Gets Beautiful Today, founded by young queer students. And there's also a person from Maharashtra, but the person's on a break. Okay. But Hmm. except for them, no one else will join as speakers. Okay, they also many times are unable to because of connectivity issues and all that. Hmm. But Hmm. also doing this very important thing of talking to high school students and college students about gender, sexuality, and diversity, which is so Exactly. so, we talk about, Hmm. unfortunately, there are so many things. Structures, institutions are also homophobic, queerphobic, transphobic, and society at large, which supposedly doesn't have too many structures or whatever, also is like that. But anyway, we do our best in wherever we can. तो यशिका, मैंने आपके बारे में कुछ ठीक से बोला नहीं या कम बोला है, नहीं तो आप नहीं बोलिए। नहीं नहीं, बहुत सही, बिल्कुल सही बोला आपने। और लाइक ये तो बिल्कुल एसेंशियल है, बिल्कुल बेसिक है। लाइक कि किस तरीके से जो एक गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, तो उस पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत से स्पेसेस ऐसे हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वहां पे भी अभी भी ट्रांस लाइक एक्सक्लूजिंग है वो अभी भी। लाइक एयरपोर्ट्स हो गया, बिल्कुल, और रेलवे स्टेशन हो गया, और बस स्टैंड्स हो गए, वहां पे अभी भी वॉशरूम बाइनरीज में है। अब अब मुझे कहीं मान लीजिए जाना पड़ेगा, तो फिर मुझे आई नीड टू होल्ड माई पी या फॉर अ राइट। लॉन्ग टाइम। सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, तो ये इसके लिए गवर्नमेंट, वी आर ऑन द पेपर्स, बट वी आर ऑन द पेपर्स बट वी आर नॉट इन द या ग्राउंड्स। हम ग्राउंड में कहीं नहीं है, बस पेपर में है, या दिखते हैं। सो ये बहुत ही, लेकिन इस पे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स लेवल से ही, वहाँ पे ना ही जेंडर के बारे में उनको बताया जाता है, ना ही टीचर्स इतने सेंसिटाइज्ड होते हैं। और वहाँ स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें, वो भी ट्रांस इंक्लूसिव नहीं होता है बचपन से, क्योंकि बचपन से बच्चे को नहीं पता होता है उसका जेंडर क्या है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जेंडर नॉन कंफर्मिंग होते हैं, तो उनको लाइक किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि स्कूल्स में, बाइनरी स्कूल्स में जहाँ तक हम देखते हैं उनको, अगर बॉयज होते हैं तो लाइक हेयर लंबे नहीं करना है, हेयर कटिंग कर देते हैं, नहीं तो पनिशमेंट देंगे। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स लाइक जब स्कूल्स लेवल पे होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होता है, और उसको फिर मारते हैं, पीटते हैं, बुली करते हैं। टीचर्स की बात कर रही हूँ, वो बुली करते हैं। तो सच काइंड ऑफ लाइक अभी भी लाइक स्कूल्स लेवल पे जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं है। इवन अभी पुलिस ऑफिशियल्स जो है, पुलिस कितना ह्यूमिलेट और वायलेट करती है ट्रांस और क्वेयर पीपल्स को, और उनका एफआईआर नहीं लॉन्च करती है, लिखती नहीं है। तो बहुत ही जो टीचर्स हैं उनका जो, वो बहुत ही हेट्रोनॉर्मेटिव होते हैं, और बहुत ही सिस और हेट्रोनॉर्मेटिव होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई टीचर है, ट्रांस है, खुद को आइडेंटिफाई करता है ट्रांस है, तो उनको 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 वो कर दिया जाता है, मतलब उनका उन लाइक उनकी उनको लाइक जॉब से निकाल देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं। सो इस
इस तरह की चीजें जो है वो ये बताती है कि हमारा लॉ तो आगे कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, लेकिन सोसाइटी अभी भी 10 कदम बहुत पीछे है, कदम पीछे है। तो उस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और इसके लिए हम हमें सबसे पहले तो एजुकेशन, एजुकेशन, क्योंकि ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरा कल्चरल सिस्टम बना है पूरा, अ, जिसमें जो सिस कल्चर है पूरा हमारा, जो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे उसमें कास्ट भी आता है, उसमें जेंडर भी आता है। तो ये पूरा जो क्रिएट किया गया है, ये जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं ह्यूमंस के चारों तरफ, उस पे सोचने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है। और हमें देखना पड़ेगा कि ये बाउंड्रीज क्रिएट क्यों की गई हैं। तो उसका जब आप रीजन पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री किस तरीके से मिटाई गई है ट्रांस लोगों की। अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री मिटाई गई है। और जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, जो देश फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जो ट्रांस और जो क्वेर लोग जो फ्रीडम फाइटर होते थे, तो उनको डर, उनसे डर था किनको, ब्रिटिशर्स को, कि कहीं ये हमारे खिलाफ न चढ़ बैठे। तो इसलिए उन लोगों को, सारे ट्राइबल कम्युनिटी को और उसमें ट्रांस कम्युनिटी को स्पेशली क्रिमिनल घोषित किया गया कि ये लोग क्रिमिनल हैं। और ताकि वो रिबेल ना कर दें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो इसलिए उनको लाइक जो है क्रिमिनलाइज किया गया, उनको ऐसे इस लेवल पे लेकर आया गया कि वो बहुत मार्जिनलाइज हो गए सोसाइटी के अंदर। तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। और कास्ट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अ, अ, अगर विमेन की बात करूं या फिर ट्रांस और क्वेयर आइडेंटिटीज की बात करूं, तो कास्ट एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इफेक्ट करता है। लाइक अगर हम घराना कल्चर देखते हैं, जो घराना कल्चर है, ट्रांस जो कल्चरल कम्युनिटीज है, उसमें देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द लाइक जो हेड हैं, ठीक है, जो वहां पर जो दलित और आदिवासी ट्रांस रहते हैं, फिर उनको कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए देते हैं, या तो तुम सेक्स वर्क कुछ कहीं से भी करके तुम पैसा लाओ, और इनसाइड द होम अंदर उनसे ऐसा काम करवाते हैं, लाइक देयर आर लाइक वॉशरूम क्लीन करो, तो इस टाइप के खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। तो इस टाइप के जो कास्ट को देख करके वो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, जो कि जिसपे अभी खुल के बात नहीं करते हैं लोग, लेकिन वो चीज हो एग्जिस्ट करती हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि मोस्टली क्योंकि जो सवर्णा ट्रांस और क्वेर पीपल है, उनके पास एक प्रिविलेज रहता है, कास्ट का प्रिविलेज होता है। और जो प्रोबेबली जो दलित ट्रांस और क्वेयर पीपल है, उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं होता। एक तो फैमिली से बैकआउट हो जाता है, फैमिली का बैकआउट है, सोसाइटी का है, ऊपर से कास्ट का ऑपरेशन भी है, जेंडर बेस्ड जो छुआछूत है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर से कास्ट का भी छुआछूत जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये सब मेंटली इतना इंसान फक्ड अप हो जाता है, मेंटली अपने आप को इतना वो हो जाता है कि फिर या तक वो सुसाइड कर लेता है, वो सुसाइड लेवल तक चले जाता है। तो ये सिनेरियो हो जाता है। तो फिर ऐसे में वो फिर एजुकेशन तक नहीं आ पाता है। और एम्प्लॉयमेंट तो फिर दूर की बात हो जाती है, कि जब वो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ही नहीं पूरी हो पाएगी, तो फिर आगे का सिनेरियो बहुत मुश्किल हो जाती है। Okay, fantastic. Yashika ji, you spoke about some very important issues. You summarized. Kyunki, because we may have some audience, I mean, actually happy to tell you that a couple of friends from outside India who are not of Indian origin or South Asian. Exactly. So, Hmm. so for their benefit, I'm summarizing things in English and type. Okay, so also, Yashika, it's been over 10 years, okay, of the NALSA judgment. All right, NALSA Okay. versus Union of India.
with Hmm. actually the your comment that we exist only on paper, rather our rights, so Hmm. called policies, everything exists only in letter, you know, not letter of the law, Exactly. not the spirit of the law, unfortunately. Hmm. And it's not just law, that is where it seems to start for us, but also is ending for us right there. And Exactly. yes, again, we are not homogeneous within the community itself, there's so much diversity, but the oppression, repression, the violence of exclusion which we face from outside, you know, LGBTQIAP plus community. Yes, in sometimes some ways, sorry, we hesitate to call it. It is not one united community. Of course, Exactly. differences, some commonalities are there. Even sometimes, unfortunately, so-called privileged people, those privileges are not useful, are not, Hmm. or are misused. And of course, like you said, very rarely discussed. There's lots of discrimination and violence within the Hijra system. And even for many of us, like, I am gender fluid, and one, so, I did not know so many people in this Hmm. is actually, which will, I think, one day or sooner than later, they're becoming visible. But Hmm. Definitely. many of us came through a period where we did not even know there are other people like us. Yeah. Wherever, north, south, east, west, rural, urban, small town, big city, whichever, Hmm. and and neither homes nor outside were safe, right? Physical attacks and all that, right? Hmm. Unfortunately, that has not reduced, you know. uh, yeah. So, you know uh, I want to request you to talk more, of course, throughout this conversation. In you're comfortable with, only we will talk. I might ask something Hmm. willingly, but please, you can ignore and also say you don't want to answer that or don't want to discuss that. Up to you. As I said, this is not like an interview. Yeah, exactly. So, at the university level of, is Hmm. it possible for you to specifically talk about that campaign, or the I mean, I won't say campaign in that way, but your efforts and initiatives which helped bring about some change, okay, and for, I could say, documented change, right? Yes. Okay, yeah, Hmm. to talk about that, but also, if possible, as to how, as gender minority, as a caste minority, also, yeah, if you could talk about, your personal experiences of, obviously, systemic discrimination. Hmm. Yeah, Hmm. right. I Yeah, don't definitely. you, Hmm. but I think you're sharing that. Please share. Thank you. या श्योर डेफिनेटली सो सबसे पहले तो लाइक एडमिशन फॉर्म भरने से लेके डिग्री मिलने तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टमेटिक जो एक ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है जो एक ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटी के अंदर होती है तो उसका सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर अगर मैं फॉर्म फिल करने से बताऊं तो लाइक वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर फॉर्म फिल करने का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी हाई होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सी उसके बाद जब एडमिशन हो जाए तो वहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना होने की वजह से कई ट्रांस लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है इवन वो एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद भी
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ना होने की वजह से वो जो मेरिट में आने का एक क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट है उनका, उनके साथ जो अगर किसी तरह एडमिशन हो गया उसके बाद उसका प्रॉब्लम हॉस्टल का आता है। उसके बाद हॉस्टल का इशू जब आता है तो फिर वहां पर यूनिवर्सिटी लेवल पे, एकेडमिया पे, वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि हॉस्टल ट्रांस मैन है, मतलब उनको ट्रांस का समझ ही नहीं आता पहली चीज तो। फिर उनको ये लगता है कि फिर वो डिनाई कर देते हैं। फिर उसको या कभी गर्ल्स हॉस्टल में रख देते, गर्ल्स हॉस्टल में रखने का वो नहीं करते, लेकिन बॉयज हॉस्टल में भी नहीं रख सकते। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनको बताना पड़ता है कि नहीं ऐसे से आपको ऐसे करना है। फिर उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डेरोगेटरी, मतलब उनके जो कमेटी अंदर कमेटी बनती है उसमें बहुत डेरोगेटरी तरीके के बातें करते हैं वो आपस में, अथॉरिटीज मिलकर आपस में। तो ऐसी चीजें लाइक आपका बॉडी को लेकर के वहां पे पुलिसिंग करेंगे, बॉडी पुलिसिंग की नहीं, उसकी सर्जरी हुई है नहीं हुई है, ये सब पॉइंट्स को लेकर के वो बहुत ये करते हैं, मतलब माइंड करते हैं कि इस तरह की चीजें करते हैं। उसके बाद में किसी तरह चलो फिर फाइट, फिर मैंने तो फाइट किया, लाइक प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो तो बिल्कुल बेसिक राइट है। और इवन आई वाज इन द मेरिट लिस्ट, मेरे मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उन्होंने डिनाई किया था। तो फिर मैंने फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया। और पिटिशन फाइल किया, रात भर दिन भर वहाँ प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद पिटिशन फाइल किया। फिर पिटिशन, जब तक पिटिशन का जज ऑर्डर नहीं आ गया तब तक मुझे यूनिवर्सिटी ने टेम्पोरेरी बेस पे फैकल्टी गेस्ट हाउस पे रखा था, कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक कोई ऐसे पॉलिसी नहीं बना लेते। फिर ये लड़ाई चलते चलते लाइक मेरी क्लास में भी जो जो फ्रेंड्स होते थे, तो लाइक जो जितने फ्रेंड लोग होते थे वो क्लास में भी ऐसा माहौल था, एनवायरनमेंट था कि कुछ बात नहीं करते थे। लड़कियां मेरी अच्छी दोस्त होती थी, बट जो मोस्टली लड़के होते थे यूनिवर्सिटी में, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब ही रहता था क्लास में, थोड़ा अजीब सा बिहेवियर लगता था मुझे। तो मतलब वो इतना इंक्लूसिव और इस टाइप का नहीं था। और दूसरी चीज ये थी कि आपके प्रोफेसर, ये कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो सही प्रोनाउंस यूज नहीं करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मेरा प्रोनाउंस गलत यूज कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर ही, क्लास के अंदर जब अटेंडेंस बोलते हैं तब उस वक्त वो डेड नेम मेरा यूज कर रहे थे, जबकि लीगली भी मैंने अपना उनको बता रखा है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम प्रोनाउंस ये है, तो मेरे को ये चीज कंसीडर की जाए, मेरा लीगली नेम चेंज भी हो गया है। तो आप ये डेड डेड नेम बुलाकर आप ऑब्वियसली मुझे ऑफेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स में। तो फिर मैम, एचओडी मैम बहुत इंक्लूसिव थी मेरी हमारी, तो उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं, अगर किसी का ऐसे चेंज हुआ है तो फिर उनके साथ ऐसे इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लाइक पूरे अपना जो प्रोफेसर्स और बाकी सबको समझाया इस चीज के लिए कि इस तरह की, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, और फिर उसके बाद भी ऐसी, मतलब सिस्टमेटिक, और ये क्लास में इस तरह का एक्सक्लूजन, और टीचर्स से वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई करेगा। तो फिर तो वो चीजें क्लास में थी मेरे। और हॉस्टल के साथ, हॉस्टल वो स्ट्रगल, और वो एक माइंड में डिप्रेशन, वो कि एक तो डिसजेंडर डिस्फोरिया का डिप्रेशन, ऊपर से फिर स्टडी का, फिर आगे कैरियर का को लेकर के, ऊपर से फिर प्लस एक प्रॉब्लम और आई थी, कास्ट बेस्ड स्लर मुझे बोला था बाय द सवर्णा कास्ट, सवर्णा ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने आप को ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। बट वो क्या होता है, जब आप कहीं एक्टिविज्म स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि कोई मेरा कंपटीशन में आ गया है, तो उनको फिर अपना खतरा महसूस होता है। तो फिर वो ऐसी चीज क्रिएट करते हैं, लाइक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर मुझे डेथ थ्रेट्स भी दिए हैं, मतलब उस तरीके से। हाँ, ये चीज मैं ओपनली एकदम बोल रही हूँ, और होश और हवा से बोल रही है ये चीज। तो डेथ थ्रेट्स दिए हैं, मरवाने का, नहीं तुझे हिजड़ों से पिटवा देंगे, तो मतलब इस तरह के डेथ थ्रेट्स दिए हैं।
तो उसको वो मेंटली कितना टॉर्चर किया मुझे, मतलब मैंने मैम से भी बताया, तो वो चीजें, मेरा एग्जाम था, ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने कैसे, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी इस वजह से, तो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और फिर उस सेमेस्टर में मेरे मार्क्स भी थोड़े कम थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो मेंटल ऐसा कास्ट को लेकर के ऐसे कमीने, ट्रांसजेंडर और पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे थे। कमीना एक कास्ट है, एससी कास्ट की एक सब कैटेगरी है, सब कास्ट है पंजाब के अंदर। पंजाब लाहौर में आजादी से पहले एक कास्ट रहती थी, वो तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका लिखा भी था, तो वो चीज के नाम की गाली वो दे रही थी, ऐसा था। तो ये चीजें मेंटली कितना अफेक्ट किया, तो फिर मैंने मैंने मैम से, मैं मैम के सामने रोती थी, एचओडी के सामने रो रही हूँ, तो कितना मेंटली डिप्रेशन था मेरे को कि मैम मुझे नहीं पढ़ना है, मैं छोड़ दूंगी, मेरे को बहुत ये हो रहा है डिप्रेशन। तो फिर मैम मेरे को हिम्मत देती थी, फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, एटलीस्ट मैं मास्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इससे चीजों से लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, लड़ना तो पड़ेगा। तो फिर जाके फिर मैंने अपने स्टडी पे फोकस किया, और फिर किस तरीके से फिर मैंने काम किया इस चीज को लेके, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना। तो सेल बना, सेल बनने के बाद में वहां पे पहले सेल नहीं था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां सेल बना, फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन मिला सभी ट्रांस स्टूडेंट्स के लिए, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी ट्रांस स्टूडेंट आता है तो वो फ्री स्टडी वगैरह के साथ फ्री हॉस्टल भी उनको प्रोवाइड होता है, मिलता है। और वहाँ पे लाइक एडिशन 1 एडिशनल सीट भी रिजर्व है ट्रांस कम्युनिटी के लिए, ट्रांस स्टूडेंट के लिए। और तो ये चीज चेंजेस जो है वो आई हैं अभी अ, मेरे बाद। और वही आई थिंक बहुत सारी चेंजेस ऐसी हैं कि सोशली चेंज होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स का, स्पेशली जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का, लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं, बिल्कुल भी सब मैनिफेस्टो लेकर आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और उसके उसमें कोई भी ट्रांस और क्वेर स्टूडेंट्स का कोई नामो निशान नहीं होता है। मैं पहली वो इंसान थी जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी इसके लिए कि पॉलिटिक्स में भी ट्रांस के लिए जगह होनी चाहिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी ट्रांस के लिए जगह होनी चाहिए, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, किसी कुछ भी हो, तो उसमें ट्रांस के लिए होना चाहिए, क्योंकि सिस वहां पर भी सिस बाइनरी का कब्जा है, अभी भी सिस बाइनरी का पूरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी भी कब्जा किया हुआ है। सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ सिस हेट्रोनॉर्मेटिव पॉलिटिक्स ही चलती है, कहीं भी कोई ट्रांस कम्युनिटी का कोई नामो निशान नहीं। और यही बात अगर मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट की बात करती हूँ, तो उसमें आधे से ज्यादा अम्बेडकराइट मूवमेंट सिस अम्बेडकराइट मूवमेंट चलता है, ना कि कोई और ट्रांस पे कोई बात नहीं करता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू है, और इस पे मैंने एक कॉन्सेप्ट भी मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, लाइक अम्बेडकराइट फेमिनिज्म, किस तरीके से फेमिनिस्ट एक जो लास्ट प्रीवियस 4 वेव्स फेमिनिज्म है उसमें किस तरीके से लाइक जो दलित और क्वेर, दलित और जो ट्रांस वेमेन है उनको किस तरीके से सेक्सुअली लाइक एक्सप्लॉइट किया गया है, सेक्सुअली उनको बोला गया कि नहीं दे आर बायोलॉजिकल मेल, ये बायोलॉजिकल मेल होते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिक वो फेमिनिस्ट का था। तो और सेकेंड चीज कॉन्सेप्ट है अम्बेडकराइट मूवमेंट में, लाइक है कि सिस हेट्रोनॉर्मेटिव वहाँ बात होती है पॉलिटिक्स में उनकी, अभी भी आज पूरा सिनेरियो देखा जाए तो सिर्फ विमेन में भी कुछ ही चेहरे हैं लीडरशिप में, और उसके बाद कोई चेहरा नहीं है, अभी तक भी कोई चेहरा नहीं है। तो मैं इन दोनों को ब्रिज करने की कोशिश कर रही हूँ और एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जो फिफ्थ वेव फेमिनिज्म पे वर्क करता है, और लाइक दिस इज अम्बेडकराइट फेमिनिज्म, जो ब्रिज करेगा दोनों चीजों में कि किस तरीके से क्वेर और दलित, क्वेर और ट्रांस पीपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको उनका पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, सोशियो इकोनॉमिक हर चीज में उनका रिप्रेजेंटेशन है, होना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। और जेंडर सेक्सुअलिटी पर बात ऐसी है जो स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए हम लोगों को, और कॉलेज लेवल पे लाइक
पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अभी रिसेंटली अभी मैं लखनऊ से हम आए थे, तो लखनऊ में यूपी में अभी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बना है रिसेंटली, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसका मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन अभी पहली बार ही पुलिस यहाँ पर यूपी में लखनऊ में हुआ है, तो वहां पे भी मैंने ये चीज मुद्दे रखे कि किस तरीके से ट्रांस लोगों को बुली का सामना करना पड़ता है इनसाइड द फैमिली भी, और किस तरह सोसाइटी में, और किस तरीके से पुलिस के अंदर भी उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी कोई केस रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो उस चीजों पे मैंने वो खुलकर बात करी है, जो कि होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इस पर बात करें, और हर जगह रिप्रेजेंटेशन जो है वो जरूरी है दलित, ट्रांस और क्वेयर इंडिविजुअल्स की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना आई थिंक हर मतलब कुछ आप कर नहीं सकते, चाहे वो सोशल मूवमेंट हो चाहे कुछ हो, आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो अम्बेडकराइट मूवमेंट हो। हर जगह वी एग्जिस्ट, हम बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, करते रहे हैं, बौद्ध के टाइम से लेकर के अभी तक हम एग्जिस्ट करते हैं। और हमें वही है, वी आर नॉट द नेग्लेक्टेड पर्सन। हम कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो अभी अचानक से आ गए, या कोई वेस्टर्न कल्चर आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस पर बात होनी चाहिए। और लाइक जेंडर डाइवर्स, सब अपने आप को बोलते हैं जेंडर डाइवर्स, बुद्धा के टाइम पे भी 4-5 जेंडर के बारे में बात है, लेकिन बुद्धिज्म में भी फिर सिस बुद्धिज्म चल रहा है अभी भी। मतलब हर रिलीजन, मैंने रिलीजन को देखा है, वो सिस रिलीजन है, वो कोई भी क्वेयर और ट्रांस रिलीजन नहीं है। को सारे रिलीजन का आपने देखा होगा, वो सिर्फ हेटेरोनॉर्मेटिव एक डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक पैट्रियार्की नोशन को प्रमोट करता है। तो वो चीज रिलीजन को लेकर के अभी रिसेंटली मेरी टॉपिक पे बात हो रही थी, सेक्स वर्क के ऊपर, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन जो है, ये इसमें घुसाया गया है विमेन, और जो ट्रांस लोग हैं इनको जबरदस्ती घुसाया गया है इसमें, क्योंकि उनको विमेन वो हुड होना हर रिलीजन में एक कमजोरी दिखाया गया है। विमेनहुड को किस तरीके से ट्रिगर किया गया है, किस तरीके से उसको सेक्सुअलाइज किया गया है, वो हर रिलीजन के अंदर है। तो किस तरीके से उसको इस नोशन को बचाए रखने के लिए वो यूज किया जाता है उस चीज को। तो उस पे मैं बात कर रही थी। तो ये चीज है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे कभी शायद बहुत कम ही बात होती है, लेकिन डिटेल में, हिस्टोरिकली, और या बहुत थोड़ा क्रिटिकल वे में उसको, लॉजिकली उसको अगर सोचें, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। और नालसा जजमेंट 2014 में आया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। उसके बाद आज ये 2024 का ये लास्ट चल रहा है, 10 साल पूरे होने को हैं, 2025 लगने वाला है। उसके बाद अब देखिए ट्रांस लोगों के को लेके क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। क्या चीज नहीं हुई है वो बहुत ज्यादा है, सारी चीज पेपर पे है, सिर्फ ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सब कोरा कागज है। और कितने ट्रांस स्टूडेंट का डेटा है, कितने ट्रांस स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं अभी एनएलयू या कहीं से की कोई अच्छे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में, कितनों का एम्प्लॉयमेंट, कितने डीएम बन गए, कितने आईएएस पीसीएस बन गए, वो भी डेटा देखना है। कितने लोगों को आपने रिजर्वेशन दिया, नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, उसका क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उस सारा, फिर बोलते हैं कि आप वोट बैंक नहीं है, सारा वोट बैंक का खेल है। वो बोलते हैं वोट बैंक, हर चीज करने के लिए वोट बैंक, ये चीज है। और ट्रांस का यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए हमेशा, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, उनका यूज जो है वो वोट बैंक के तौर पर ही किया जाता रहा है। और अगर एनजीओस की भी बात करूं, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कोई भी एनजीओ के साथ में जो वर्क करते हैं। लाइक मैंने ये चीज देखी है कि किस तरीके से एक्सक्लूड किया जाता है क्वीर और ट्रांस बोल करके। ट्रांस को हायरिंग प्रोसेस, जो प्रोसीजर होता है उसमें एक्सक्लूड किया जाता है एक्सपीरियंस के नाम पर। जब वो क्वालिफिकेशन मांग लेते हैं, बैचलर्स मास्टर्स, फिर उसके बैचलर्स भी मांग लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से एक्सपीरियंस के नाम पर उनको एक्सक्लूड किया जाता है कि अभी तो वो ट्रांस लोग पढ़ रहे हैं,
अभी जो पढ़ के पास आउट हो रहा है वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि वो अभी तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा 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 करके पढ़ना शुरू किया, तो एक्सपीरियंस सडनली कहाँ से लेकर आएंगे? तो उसके लिए जो है थोड़ा सा उसमें ट्रांस इंक्लूसिव ऐसा हायरिंग प्रोसीजर्स रखना चाहिए, जिसमें ट्रांस के लिए थोड़ा सा थोड़ा चीजें रिड्यूस किया जाए, ताकि वो आ सकें, क्योंकि एनजीओज में या तो आपके पास कॉन्टेक्ट्स होना चाहिए, या तो अगर कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई आना चाहे तो फिर आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत से मेरे ट्रांस फ्रेंड्स हैं, वो इसी वजह से फिर वो एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, अच्छी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, और उनमें मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ये चीज देखी है, तो ये चीज है, सिस्टमेटिक है, कोई चीज पॉलिटिक्स किस तरीके से होती है इसमें भी, कि आप 5 किलो राशन दिखा तो देते हो डालने के लिए इंस्टाग्राम पे कि हम ट्रांस लोगों को दे रहे हैं, हमें डोनेशन चाहिए, तो अच्छा नहीं है ऐसे दिखाना कि राशन और ये सब डोनेशन के नाम पे तुम ये ले लेते हैं, और उसके बाद में हायरिंग प्रोसीजर्स और उसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, फिर हायरिंग प्रोसीजर्स में आपके ट्रांस काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो एक इशू है। वो भी आई थिंक वो अभी रिसेंटली ये इशू सामने आया है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पे भी बात करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो फिर वो सबसे बड़ा इशू है। सो या काफी कुछ बोला है आपने, एंड बहुत आई मीन वो बिल्कुल सही है, एंड वेरी वेरी what do you say, the harsh reality of like you, and this happens in almost every conversation I have online offline with uh, queer trans folks, especially who are multiple times marginalized, that I think, and I'm sure you and so many others will agree, that the best laws are useless, okay, if the mindset is so fucking binary, heteronormative, exactly, heteronormative, exactly. right? Yeah, I know people, sometimes we are so exhausted we can't help swearing, okay, in a different way. But, matlab, you know, the way you actually said, again, reminds me, I've said, also repeated this, but many times we have new listeners, people also who watch later and comment and share. Thanks for that. Ki just because there is no evidence which people can understand or interpret does not mean we queer trans people did not exist. We have existed from the time all human beings have existed. Okay, Exactly. so uh, whether there's documentation of it, whether the documentation was preserved, deliberately destroyed, whether it's in a language which can be translated, or deliberately they will mistranslate and misinterpret that, whatever it is, na, ki if you cannot respect us as human beings, what is your human life worth? I sometimes ask this. कि आप लोग कितना डिस्क्रिमिनेशन करोगे, how insecure are you that our very existence seems to be a threat when actually we ourselves are struggling to exist, na? Exactly. हम तो we, I mean, are trying to just sometimes live, survive, okay, and then you find that a problem. That's why sometimes, unfortunately, it's not that it's funny, but I laugh in a very, what do you say, crude way. I'm tired of crying and, also being angry. Sometimes I still cry, sometimes I'm still sad, I get very angry. Lekin, matlab na, 6.5 years, September 2018, 370 was read down, right?
and it's fantastic that you connected, because many people do not know of the link to the Criminal Tribes Act, and afterwards this horribly derogatory Hyderabad Eunuchs Act came, and that is now called Telangana this thing, but originally that was what it was, no? Criminal, because all these were very colonial leftovers dumped here, and it is so shameful that it took us till 2018, and फिर भी they just read it down. Okay, and अभी तो भारतीय अन्याय संहिता आ गया मुझे तो कुछ न्याय दिखाई देता. I'm not even sure. We know how much worse this is going to be for us. It is toxic masculinity. Masculinity itself is very toxic. Patriarchy, there is no limit. I mean, few days back, right, some chap raped a 9-year-old child and then inserted a rod and then ensured that person could not survive, right? I mean, is the example of India as it is. Whatever they said, no, 2 years ago, Amrit Mahotsav. Amrit Mahotsav. Yeah, that's what Mahotsav, Amrit Kal and all that. I don't even know what this Amrit is, because it is not Amrit for 90% of the people almost, 70, what 70, 80, 90% of the people do not have. And returning to what you so beautifully summarized, right? Of course, that is the reality. Is not, you have experienced, so many are experiencing, you have voiced it. And see, our people are not there in bureaucracy, but those existing patriarchal bureaucrats and whatever everybody else who wants to be bureaucratic just makes it so difficult for us. And फिर उसके बाद सॉरी बोलेंगे अभी आप सर्वे करोगे तो that reservation category may not be used, and काफी लोगों को मालूम नहीं है, जो मालूम है they are not able to use it because there are these systemic barriers, no? Exactly. First, ensure that you're ignorant about the provisions. Okay. Right? I mean, many years ago, definitely about 8 years, maybe 10 years even, people did not know that in Karnataka, 2 seats in, I think, all universities, I think all disciplines also, there was reserved for trans people. Okay. And then very quickly, maybe in a year or two, the government said, oh, this is not being used. You people say we just give you 2 seats. Like, first of all, 2 seats are useful. That number, okay, leave the statistics aside. Okay, disproportionately provided. How many trans people are even today able to complete high school? Where will they go for university? It is not that nobody should think that trans people or any of us, are incapable of pursuing education or don't need, or सब धंधा करेंगे, ऐसा नहीं है, right? So you create such a toxic atmosphere, okay, people just want to discontinue as early as possible. They just run away from schools and everything to say, oh, nobody is accessing higher education. बिल्कुल, as a person with disability, we talk about access all the time. Access to तुम लोग, just you completely bar it, right? Create all the, not even just hurdles, complete roadblocks, that they Exactly. and then how are people? And if people like you are able to negotiate, persist, and how many people will have that energy and the strength, right?
one HOD is supporting you. Okay, that Hmm. shameful also, right? That Exactly. every time, in a way, it is sad that we have to talk about ourselves as exceptions. Hmm. है ना कि आपको लेकिन I know some very cliched questions because these fundamental things are so necessary. बिल्कुल आपका बिल्कुल। का था, and more importantly, I know UP is the worst place to be in India currently for हम्म। Dalit people, for Muslims, for women. I think for anybody who नहीं is बड़ी। not हम्म। Sanghi, okay, it is impossible to just even survive. हाँ, तो लेकिन फिर भी आप उसके वजह से या क्यों आप यूपी से पंजाब गए, कैसे गए? इफ यू डू नॉट माइंड प्लीज शेयर. हम्म। बेसिक थिंग जो था यूपी से चंडीगढ़ तक आने का पढ़ने, क्योंकि मेरे पास लाइक फाइनेंशियल, सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं कि फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से सबसे पहले तो इशू आता है कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, कि क्योंकि फीस भी देनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, फीस वगैरह लगती हैं। और दूसरी वजह से लाइक यूपी में एज कंपेयर टू चंडीगढ़, यूपी में बुलिंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ इस वजह से भी मैंने चंडीगढ़ चूज किया था। चंडीगढ़ में एक बार मैं अपना मास्टर्स करूंगी, उसके बाद अगर मुझे फर्दर करना होगा तो फिर मैं कुछ करूंगी यूपी या कहीं और से। बट यूपी का लाइक सिनेरियो बहुत ही अलग है, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ही ज्यादा होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक है इंस्टीट्यूशंस में। और चंडीगढ़ में उस हिसाब से काफी लाइक फिर भी काफी सही है चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि वहां पर अब भी मतलब लोग यूपी के एज कंपेयर टू यूपी, चंडीगढ़ इज फार बेटर, काफी सही है। बट स्टिल वहां पर भी इतना कोई खास नहीं है। वहां पर भी कास्ट और ये सिस्टमैटिक जो ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर है अथॉरिटीज का, स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक इन्वायरमेंट है, तो वो जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उसको डील करना सबसे बड़ा, कहते हैं ना, उसके लिए गट्स चाहिए, कि हिम्मत चाहिए, कि अगर ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब ये नहीं कि प्रॉब्लम है तो फिर हम बैठ जाएंगे रोने के लिए कि नहीं, कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ तो आइडिया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जरूर होता है। तो उसको लड़ना बहुत जरूरी है मेरे लिए हिसाब से। हर ट्रांस और क्वेयर पीपल को खुद के लिए लड़ना आना आना चाहिए। एक चीज बोलते हैं ना कि कोई सामने वाला आके आपको हाथ पकड़ के लड़के सारा सारे राइट्स लेके नहीं लाके देगा, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है उसके लिए। हर किसी को अपने इंडिविजुअल लड़ाई खुद ही लड़नी है, हर किसी को। कि अगर आपके साथ कोई किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, तो आपको खुद लड़ना है उससे। तो ये इस मेंटल, इस कॉन्शियसनेस तक आने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक्सपीरियंस, जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो लगता है बहुत, मतलब खुद में अगर इंसान सोचे तो फिर अ, होता है वो चीजें। क्योंकि कुछ ट्रांस पीपल ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो उनको कोई बुली करा क्लास में, तो मैंने पूछा भी कि ऐसा क्यों, किस लिए। तो फिर वो बोला कि अरे छोड़ो हटाओ, कौन इन सब चीजों में पड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन करेगा। तो मैंने कहा जब वो ही इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना कि सामने वाला कुछ पॉलिसी बनाए, क्योंकि सामने हम ही इनिशिएट करेंगे तभी कुछ होगा। इंडियन हमारा जो सिस्टम है उसमें ऐसा है कि हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी वो सोचेंगे, दे विल थिंक कि हमें कुछ बनाना है। नहीं तो सामने से वो कभी खुद से कुछ नहीं करने वाले। कोई पॉलिसी या कोई सेल या कोई डिस्क्रिमिनेटरी, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी सेल या कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा ही इनिशिएटिव, हमारा कंपैशन होना उस चीज के लिए उनको दिखना जरूरी है कि हाँ, शी इज वेरी लाइक, उनको वो बहुत अवेयर है अपने राइट्स के लिए, या फिर अपने बुलिंग वगैरह को वो फेस नहीं करना चाहती, और फेस नहीं करती, और शी इज वेरी बोल्ड टू मतलब इन चीजों के लिए। तो उसके लिए लाइक यही चीज है कि
बाकी यूपी का तो लाइक यही है कि रिसेंटली गए तो रिसेंटली अभी होके भी आया ना, अभी लखनऊ यूपी, तो यूपी का थोड़ा माहौल कास्ट और जेंडर को लेकर के बहुत ही थोड़ा है प्रॉब्लम, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी सेल तो बन गया, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल, एंटी वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल यूपी में। अब लेट्स सी, अभी देखना है कि काम कैसे करेगा। तो वो देखना है कि किस तरीके से क्राइम्स का रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं होगा वो भी। मैंने लेटर लिखा था डीजीपी को, उसके बाद सेंसिटाइजेशन का ये फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था। ये तो यूपी में कहते हैं ना, धक्का दे के चलाना पड़ता है, तो वो धक्का दे के चलाया गया है। तब जाके कुछ हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं होता है यूपी में। तो धक्का दे के चलाना पड़ता है, तो इसके लिए फिर आपको काम कराना भी आना चाहिए, वो भी एक कला है कि आपको किस तरीके से लीगली एक लीगल नॉलेज हो, थोड़ा होना चाहिए कि आपको काम कैसे करा सकते हो, आप काम कैसे करा सकते हो, किस तरीके से करा सकते हो, प्रेशर बना सकते हो, किस तरीके एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और किस तरीके से मेरी मैम ने मुझे एक चीज कही थी, वो वो अभी भी वर्क करती है, वो करती है वर्क। इफ यू आर लीगली राइट, देन ये देन यू यू डोंट नीड टू फियर फ्रॉम एनीबडी। तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लीगली राइट हो। अगर तुम अपने राइट के लिए लड़ रही हो, तो तुम्हें पॉलिटिक्स हो, कोई हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज वर्क करती है। और यूपी में इतना आपने देखा ही है कैसा पॉलिटिक्स है यूपी में, लेकिन उसके बाद अगर मैंने कैसे डीजीपी को लेटर लिखा एंटी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के लिए, उसके बाद यहाँ पे सेल भी बना, उसके बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसके बाद में फर्स्ट सेंसिटाइजेशन हुआ। सेम ऐसे यूनिवर्सिटी में भी हुआ। यूनिवर्सिटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट में जेंडर सेंसिटाइजेशन इवेंट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किया, और आईआईटी दिल्ली गए थे। तो बहुत सी जगह जाते हैं, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हायर एजुकेशन पे तो हम करते हैं, हमें स्कूल लेवल पे करना है। स्कूल लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल लेवल बेस तो स्कूल है ना। तो अ, वहाँ ही हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी स्टडी के लिए, तो फिर एजुकेशन वो हायर लेवल पे तो बाद में जाएंगे ना। तो पहले तो बेसिक 10th 12th तो वहीं से पास आउट करना है। तो वो किस तरीके से बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल का जो क्रिएशन है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्म्स क्रिएशन, किस तरीके से बाइनरी यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में किस तरीके से सिलेबस ऐसा है कि वो भी बाइनरी है, ऐसा पूरा सिलेबस, वहां पे कहीं जेंडर का कोई नामो निशान नहीं है। और जिस तरीके से मेरा मानना तो ये है, जिस तरीके से ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज को कंपलसरी किया गया था, उसी के बिहाफ पे अब इन्वायरमेंट को जैसे जेंडर भी इफेक्ट करता है किस तरह से, तो इस वजह से जेंडर स्टडीज को मेरे ख्याल से उसको कंपलसरी करना चाहिए हर स्कूल्स में, हर यूनिवर्सिटी में। इसको कंपलसरी आपको पास आउट करना है, जेंडर सब्जेक्ट को। तो मेरे हिसाब से वो, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई 6% जेंडर सेक्सुअलिटी के टॉपिक पे इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। उसको फोर्स करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट उतना तो नॉलेज हो कि व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज सेक्सुअलिटी। और हमारी साइंस की जो बुक्स होती है 9th 10th की, उसमें रिप्रोडक्टिव वाला जो एक चैप्टर होता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो वहां पे भी बाइनरी नॉलेज देते हैं कि ये मेल का बॉडी ऑर्गन ऐसा होता है, फीमेल का ऐसा होता है। ट्रांस इंटरसेक्स का कोई बात नहीं है, उनकी बॉडी और उनकी, तभी जाके लोग आगे जाके ऐसे पूछते नहीं ट्रांस बॉडी कैसी होती है, अपना क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। कहीं इनबॉक्स करेंगे तो कहीं मैसेज करेंगे, ट्रांस हमें पता नहीं है, ट्रांस होते कैसे हैं, उनका कैसा पार्ट होता है, ये क्यों प्रॉब्लम आती है। वो ऐसे से बिहेव करते हैं डेरोगेटरी वे में, कि लगता है कि ये प्रॉब्लम सारी साइंस की है, बचपन में जो पढ़ाया जाता है ना, तो वहां नहीं बताया गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। फिर हम बात करने बढ़ते हैं, ठीक है तुम ठीक एक काम करो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, वो तुम्हें पूरी डिटेल में नॉलेज देगा। तो इस तरीके से किस तरीके से साइंस को भी लाइक बाइनरी में मोड़ा गया है साइंस के अंदर, वो सिलेबस को। और किस तरीके से फिर अगर हम कन्वर्जन थेरेपी पे आ जाते हैं, तो कन्वर्जन थेरेपीज को बैन
बहुत जरूरी है। और कन्वर्जन थेरेपी का मीनिंग, पहले मीनिंग उसको लिखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग क्या है कन्वर्जन थेरेपी की, क्योंकि कन्वर्जन थेरेपी तो कुछ भी आजकल, रिलीजन को कन्वर्जन, वो भी एक अलग थेरेपी चल रही है आजकल। तो उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कन्वर्जन थेरेपी को, और उसके बाद उसका बैन जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो बचपन में इंटरसेक्स बच्चों की जो सेक्स सेलेक्ट कर देते हैं पेरेंट्स या डॉक्टर्स, वो बंद होनी चाहिए। जब तक बच्चा एडल्ट नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसका जेंडर आइडेंटिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो अपनी सर्जरी करेगा ना। तो वो उसकी चॉइस है। आफ्टर 18 प्लस उसको, जब उसको पता लगेगा कि उसका जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो करेगा ना। बट सेक्स जबरदस्ती उसको सेलेक्ट कर दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो वो फिर उस प्रॉब्लम के साथ फिर वो उनकी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, फिर अलग ही उनका मेंटल ट्रॉमा चलता है। तो वो लोग बहुत इशू है। और आई थिंक ट्रांस और इंटरसेक्स जो पर्सन्स हैं, उन दोनों को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। और ट्रांस इंटरसेक्स पर्सन की हम बात नहीं करते हैं, वो डाइल्यूट कर देते हैं ट्रांस में हम लोग। जबकि हमें उनके लिए स्पेशली बात करनी चाहिए इंटरसेक्स पर्सन्स की, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस पूरी जो एलजीबीटी आईक्यू कम्युनिटी है उसमें। तो ट्रांस प्रॉब्लम यही है कि ट्रांस के अंदर ही हम डाइल्यूट कर लेते हैं इंटरसेक्स पर्सन को, जबकि ऐसा नहीं है। उनको उनके लिए अलग से स्पेशली बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से इंटरसेक्स पर्सन है जो खुद को ट्रांस आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो बहुत से हैं जो अपने आप को मेल फीमेल या फिर इंटरसेक्स रहना पसंद करते हैं, इंटरसेक्स खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो ट्रांस खुद को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, या ट्रांस मैन, कई लोग उसको उनको टैग दे देते हैं ट्रांस मैन या फिर ट्रांस वुमेन, या किन्नर कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनकी चॉइस है, दैट्स उनका ये ओपिनियन है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आई होप Again, superb. You're just so many points in such a lucid way you talk. Yeah, and I would like to, mention, especially since you discussed about intersex people so much, which is great, necessary. I am one of the supporting co-founders of the Intersex Human Rights India Network. oh wonderful. Yeah. So I've been very closely associated with intersex people for almost 8 years now. I know some of them, their health, their personal, so many other experiences, needs, challenges, and also, literally I know them. Okay, right. And also, yeah, we have a very, a very strong bond, a very mutually respectful and trustworthy bond. Because, also, you're absolutely right in saying ki we see, we can get confused between intersex and trans people if they're completely new to our community. Okay, that is understandable. But if you just continue, uh, reducing queer trans people, um, intersex people to their body parts or gender them, that is inexcusable, unpardonable. I am not the kind who says, everybody should be punished, penalized, and all that. Nevertheless, you there is no, how long will people remain confused? How long will मतलब ये तो एक convenient escape, oh, it's too complex for me, how really able to understand gay and trans and all that. आप लोग intersex बोलते हो, bisexual बोलते हो, I am asexual, okay, you have gender and gender. So आप लोग, I mean, what, we are not bloody complicating anything and any, our life. You find us complicated because your bloody this thing approach is only unnecessary. Exactly. Yeah, maybe those people have an inferiority complex, insecurity. And intersex
पीपल के बारे में जो इधर सुन रहे हैं, लिंग भी बोलते हैं, तो इंटर दे आर नॉट बाइसेक्सुअल. ओ ओके ओके, आई हर्ड. People have two what? Two legs, two hands, two eyes, 2 ears. There may be Hmm. leg or one hand or whatever, that is okay. But when you say two and you do not want to say what is that two, we know what you mean. Yes, but it is scientifically, biologically impossible that intersex people or any human in this world has two fully formed, you know, uh, uterus, vagina, penis. Okay, that's not okay. Exactly. Yeah, Hmm. just emerging one of them, hormonally things may change. Yeah, but again, yeah, there is no need to say, अच्छा वो आदमी नहीं है, वो औरत नहीं है, क्या मजली है. I mean, what the, how stupid are you that मतलब like नहीं है, Hmm. और फिर से गाली देना शुरू करते हो. लाइक लिटरली सब कुछ गांड में नहीं होता है, राइट. Hmm. Hmm. Exactly. So many, yeah. So if your brain is only stuck there, please then you just be away, right. Hmm. We do not, क्योंकि ना noticed increasingly, like आपने बोला कि अच्छा वेस्टर्न कल्चर है, एक्सपोर्ट है. आई मीन ओके, you don't try to understand what is L in Hindi or Tamil or Gujarati or Punjabi. Hmm. Just think LGBTQIAP plus means something. What, it is not exotic, it is not rocket science, it's not coming from outer space. इतने Hmm. we people. Okay. Exactly. So Hmm. they need to say what is that. It is not what. We are not objects. We are humans. Who are we? Hmm. If we think you are worth spending our time and energy in explaining, we will do it. Because ना हम लोग Hmm. बॉडी लैंग्वेज होता है ना, उनसे बहुत कुछ समझ आता है हमें. लाइक बिल्कुल. वो जून जब आता है वो तो प्राइड मंथ हो गया. पूरा रेनबो वॉशिंग होता है. यू नो लाइक Hmm. एंड तो थोड़ा बलून्स लगाओ, वो and pride colors and everything. They won't understand the significance of the flag. The flag Hmm. constantly, evolving. To include people who are indigenous, black, indigenous, people of color, people who are disabled, having disabilities, and queer, and all that. Okay, that's the Hmm. progressive pride flag. So all of you who think pride is only, because actually on that flag for various reasons there are only 6 colors. आप Yes. हाँ, आप ना सिर्फ हमें सतरंगी बोलोगे, हम अब सब रंगी हैं. बिल्कुल. Yeah, so I mean, Hmm. like, acha, I mean, every from periodically in these lives also we put across these fundamental, very simple but strong messages. Ki literally don't mess with us, or Hmm. you know, yeah, yes, Exactly. प्लीज हमें दोस्त चाहिए, हमें एलाइज चाहिए, लेकिन ये नहीं कि यू आर नॉट डूइंग अस अ फेवर बाय बीइंग Hmm. एलाइज और Exactly. व्हाटएवर Hmm. वर्ड्स ना, कि इंक्लूजन शुड बी हियर एंड हियर. इसमें नहीं है Hmm. तो आप just waving one flag coming for Pride March, which also has become very cis-gay, Savarna dominated again nowadays, Hmm. right? बिल्कुल, बिल्कुल. Hmm. So, yeah, it is not about carrying. And no, I've noticed, oh my gosh, okay, people will come from some organization, especially the corporates, okay, for these pride marches, which, like in Karnataka, many places, doesn't happen in June. We deliberately do not want to do it in June. Okay. They will come, and I was once amazed and even amused कि आप लोग इस कंपनी के हो तो टी शर्ट, वो टी शर्ट पे हमारा
so-called colors, जो भी है आप, the incomplete, the old flag you will put, उसमें उनका कॉर्पोरेट लोगो बड़ा होता है. ओके, हम हैं वही कोलीग्स, वो सब, वो आई थिंक वो एजेंडा के साथ आते हैं कि और हमारे पता नहीं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस या हमारे ब्रोशर में डालना है, हमारे वेबसाइट पे डालना है कि वी, and you know what got so many whatever my, okay, again those people can stay away, we do not need, Exactly. right? And but anyway, back, sorry, Yashika, I'm not, hope I've not digressed too much. Like to put these messages out ki na, Pride month is every month, boss. Every day should be for us. Okay, right? Exactly. क्योंकि ना हम, I mean, through these Insta lives, we say the other thing is we hope to spread some queer joy, trans joy, and all that, because there's such so less of it, you know. हमारे अभी भी suicides, attempts, depression, mental health issue कितना ज्यादा है, मतलब ना, एक हम लोग की कम्युनिटी में, कम्युनिटी के साथ ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रहे हैं कि टुडे आई एम ऑल्सो पियर काउंसलर, एंड मुझे ना कभी रोना आ जाता है कि नो इतने फंडामेंटली दे आर, why do I mean, these people who want to be exclusionary towards their trans queer children or something, why do you want to have children, yeah? If expect क्या करते हो, like I mean, just like with people with disabilities को तुम लोग handicapped, deformed, no, it is someone's shapa or something का शाप है, ऐसा बोलोगे. Just like that only trans people, they people being born in a way is not anybody's fault. It is not some lacking, something, okay, and and वो नहीं है तो the doctors, बाप रे, how much they pathologize ना disorder. Even today, not only about for intersex people, they say differences of sex development, they want to justify using the word disorder. Though so many international and national what do you call that, and medical bodies have said कि don't use those words. बात है कि gender dysphoria में it is a challenge, it's a reality for many of us, but we will manage it the way we want to, we can, we need to. उसको ना अभी भी they give a certificate, GID, and for people no, it is still called gender identity disorder. Okay, और disorder किसमें है हमें पता है, ठीक है. तो just to this Yashika specifically about it is so good also you have said कि मतलब you heard, you thought, maybe you also saw Punjab is slightly better, but what is that ना, यूपी में तो इतना खराब है कि कुछ कोई भी पॉइंट नॉट 1% बेटर है, हमें जाना, मतलब हमें या तुम लोगों की वो क्या बोलते हैं, वो इंक्लूजन की भीख नहीं चाहिए, थोड़ा % हम बेहतर है, बाकी 99.99% कहाँ गया तुम्हारा, मतलब yeah. So yeah, now this thing which you said, I just wanted to clarify. You said UP में there is a minorities protection cell. Is it like for all minorities? Usually they'll be separate, no, SC ST के लिए and minorities cell नहीं है, like trans protection cell. ठीक है, sorry, there is minorities का ministry है in some place, सभी में नहीं, but yeah, okay, minority affairs, ठीक है, okay,
like we have protection cells for Dalits. I mean, they call it SCST, Hmm. like that only for. So this is in the police department, is it? कहाँ पे होता है? अच्छा, यस, एक हाँ, एज पर द लॉ जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है और तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट को डायरेक्शन था, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो हाँ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। हाँ, हुआ है, हो गया यहाँ पे। like, yeah, हम्म। right, right. अब कितना वर्क करेगा वो क्वेश्चन है, वो उस पे क्वेश्चन मार्क है। This reminds me, actually, few months ago, I think in Andhra Pradesh and Telangana, there was sort of a survey and all that stuff. कि मतलब ना लेटर्स या ऑर्डर्स थे कि ना एज पर नलसा जज हम्म। लेटर टीजी एक्ट कि ये सेल्स बनाना था प्रोएक्टिवली, है ना? हम्म। बट यू नो there is still no proper cell, right? And you're right that it can be housed in any department, but it need हम्म। for all the people, right? It's not only limited to government, Exactly. right? Huh. So similarly in Punjab, I mean, it's supposed to be in every state actually. So sorry, from this one. See, Shubhamoy Guhaji, whatever your identity is, obviously, please do not ask this. Are you from LGBTQ community? If we want to, we will declare. Will not declare. That is completely our choice. And like we should not ask somebody's caste or religion. If they want to reveal, uh, Exactly. please do not ask this question. LGBTQ community से हो क्या आप? हो क्या आप? वैसे हो क्या? We people ask this. Hmm. If please do not ask. This Exactly. Hmm. अगर हम खुले हैं वो हमारी मर्जी है, कहाँ तक किसके साथ कब तक खुले होंगे वो भी हमारा मर्जी. It can change, right? Exactly. Hmm. So please do not ask this question just because we said questions are welcome or messages are, and Hmm. वो क्वेश्चन हम आंसर नहीं करेंगे और कभी किसी. Obviously. Hmm. So, and this is not any hesitation. That's what. There is no need to even explain why we do not want to कि हमारा gender identity क्या है, whatever, and so uh, uh, यशिका, हाँ। अभी यूनिवर्सिटी बनाया गया आपके एफर्ट्स के वजह से. हाँ जी, हाँ जी। So this is a trans protection cell in the university, or is it something else? So I just want to know. Like it's a like anti-discrimination cell for a transgender person. हाँ, yes, anti-discrimination cell. Because there is a ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में भी लाइक उसमें कंप्लेंट ऑफिसर और सेल की बात है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। और हर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पे एक सेल होना बहुत ज़रूरी है जो कि ट्रांस, और वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। सो उसको एज पर द एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ पर, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ ये यूपी स्टेट में भी। सो ये है, और जो कि यूनियन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, सारे स्टेट। हाँ जी, जो जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट्स है उसमें भी, और जो प्राइवेट या पब्लिक स्टैब्लिशमेंट है उनको भी ये मैंडेटरी है कि इस टाइप का एक सेल होना चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो जो स्कूल्स हो, स्कूल्स में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। बट रियलिटी तो आपको पता ही है क्या है स्कूल्स के अंदर, और यूपी में तो लाइक कोई इस पे बात कर ले तो
आफत हो जाती है, सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही है। तो उनको लॉ का भी नहीं पता है और वो कुछ इम्प्लीमेंट करना भी नहीं चाहते। अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर उसके लिए फिर अम, बहुत पैशन होना चाहिए या फिर काम करवाना आना चाहिए कि इस तरीके से फोर्स करें, या फिर लीगली, या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट को, या फिर किस तरीके से स्कूल्स को जेंडर इंक्लूसिव बनाने के लिए, या फिर सेल को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। बट प्रॉब्लम यही है कि कुछ ट्रांस, वो फिर कहते हैं हमारे पास कोई ट्रांस स्टूडेंट नहीं है। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, वो जब तक नहीं करेंगे जब तक कोई वहां पढ़ ना रहा हो। जबकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली चाहे कोई पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, एटलीस्ट स्पेस को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है। अब मान लो कोई जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू जो है, तो बाकी जो है वो क्या उनके लिए एक्सेसिबल जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बनाएंगे जब तक वो आएगा नहीं। मॉल्स में अगर वो जाएगा, उसका राइट मन है राइट। जाने का, तो वो हाँ वेट करेगा कि मेरे लिए ऐसा बनेगा तब जाऊंगा। तो ऑब्वियसली पहले ही वो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि वो इंक्लूसिव हो। तो ये चीज है। अभी हम सहारनपुर की बात बताएं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, चाहे स्कूल पे हो और पब्लिक वॉशरूम हो, तो वहां पे भी ऐसे ही है, बाइनरीज में है, कुछ नहीं है अभी भी। बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, चंडीगढ़ जैसे रेलवे स्टेशन से मुझे लगता है रेलवे स्टेशन में पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। वॉशरूम का इशू बहुत आता है। तो वही प्रॉब्लम है, जहाँ वो टॉयलेट ही नहीं मिल रहा है तो एजुकेशन कहाँ से मिल जाएगी ठीक से। तो वो चीज प्रॉब्लम है। Yeah, yeah, very, very, again, crucial points. Yeah, just again, Mr. This person, Shubhomai ji, one more thing. Yes, you can message people. Currently, Ashika ji will not be able to talk. And, but please, and to everybody, whether you're watching it now or later, you are welcome to message us, whoever is in this conversation. But be respect is non-negotiable. Okay. So, हम्म। and you again, I'm saying, are not entitled to a reply. Even if we find your messages, I don't know, acceptable, still we may not have the time, the mind space, or just something we do not feel comfortable to reply, we may not reply. Okay. So again, but that does not mean you can keep, yeah, persuading us or trying to this thing, because even in an online thing we can understand sometimes people's intentions, and uh, uh, so we know how to yeah, uh, what do you call, हम्म। sorry, determine whether कोई बेइज्जती करना चाहिए, वो बढ़ रहे हैं, तो you're very welcome to message us, but उसमें तो there is, it should be respect, and, एग्जैक्टली। and yeah, and not making us feel uncomfortable. Okay, so nothing personal or intrusive. Please avoid all these in messages. हम्म। These messages to anybody, right? So yeah, that आपने जो बोला कि यशिका जी, this, हाँ जी। yeah, इधर कोई ट्रांस नहीं है, there is हम्म। no one not need this. अरे बाबा, the problem is not is in your presumption that automatically that itself is exclusionary key, and that is why people are feeling uncomfortable, unsafe to reveal their identity. Yeah, एग्जैक्टली। so we have not discriminated. Array, the fact that you're not having a cell is mandatory, is discriminatory. Your presumption that and everybody, I mean,
throughout your life you need not be open to gender identity or Hmm. belief system or okay, which you hold personal or your identity to your. So, but that does not mean that is not a justification for violating the law, because if Hmm. if you don't follow the law, do not follow provisions of law, guidelines or the rules that are stipulated, obviously you're violating. So that, so how difficult is it for that to anybody to understand? Na? Exactly. Whatever tall chair your ivory seat में आप बैठोगे and बोलोगे कि ना इधर कोई ट्रांस नहीं है. Hmm. Also on committees where even in the cis heteronormative thing itself it is so bad. You know uh, what external member of your posh committee complaints. Oh my god. We are happy to inform you, that no sexual harassment is okay. Hmm. That itself is so ridiculous because somebody not reporting it does it is not happening. For all you know, Exactly. no reports means actually somewhere people are feeling uncomfortable. There is Hmm. no ideal, not in this world, definitely not in this country. Exactly. Right. Hmm. So yes, you know, an anti-discrimination cell, because it is not about, मतलब ना कि ये भी और एक बात है कि even if they have that cell, उसमें तो the correct members नहीं होते, qualified members नहीं होते, and even if one person in that who actually is taking a very justified एंड जस्टिस ओरिएंटेड स्टैंड, उनको भी ये लोग ये करते हैं, मतलब आप चुप रहो, दे विल Hmm. मेक देम एक्चुअली व्हाट डू यू कॉल दैट कि देयर इज नो नीड टू टॉक, ओ लाइक दिस, मतलब उनका करियर स्पॉइल हो जाएगा, उसका क्या सोचोगे, Hmm. you bothered about a bloody harasser's future and present, but not about somebody who's experiencing. Oh Exactly. yeah, the हमारे लाइक वही है ना, इंडियन सोसाइटी मोस्ट जो हरासर होता है उसको सपोर्ट के लिए सब लोग स्टैंड हो जाते हैं उसके mm, सपोर्ट में. हाँ, तो ये भी एक इशू है mm, कि जो हरासर होता है, एक्यूज होता है, उसको ही सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बड़ा इजीली. उसको कोई जेल से निकलता है, फूलों की माला पहनाते हैं. बिल्कुल हाँ. And harassment and violence is gender, caste, disability, religion, and ethnicity, and class, and all this. Okay, it is never only one. All right, because एग्जैक्टली. a person is only of one identity, a reality, whichever. So obviously, na, so that is why it is so important to recognize that discrimination is of many kinds, and when you discriminate against individual, you making that space, that institution, whatever you, that whole, हम्म. you know, uh, uh, that whole that that whole entity, right, unsafe for everybody. Okay, because the fact that you feel comfortable to harass somebody, you feel एग्जैक्टली. can harass somebody, that whole stupid skewed हम्म. understanding of what do you call privilege and power, right, you use that automatically. You are make already most spaces are unsafe, you're making it even more unsafe. एग्जैक्टली. Okay, yeah, एक हम्म. काफी है, like the latest, the so-called, I mean, I grew up in Chennai, so I can हम्म. say for अन्ना यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है अभी, रिसेंटली. हाँ. हम्म. अरे तुम लोग अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन ना, हम्म. आप लोग रात में क्या कर रहे थे, व्हाई वर यू आउट एट नाइट, व्हाई हम्म. दैट, what is that relationship between you both, or what even is that got to do with, yeah, this whole thing, all to
obviously blame the victim or survivor, victimize them further, and Exactly. take the attention to protect the Hmm. perpetrator. Ah, I think we should have, but I don't know how many more laws are required. कि ना, just Hmm. like they say, bystander intervention or something, perpet, what do you say? Anti-perpetrator protection. कुछ just नहीं. Oh my God, मतलब ना, I think it's sad that I have to say that, as I said, I Hmm. don't like criminalizing, punishing everybody. Hmm. Like, Hmm. just like when bystanders don't feel encouraged to intervene, वैसे ही, the blessed protectors of the perpetrators, where they feel empowered to support the, or wrongly the support or support Hmm. the person who's doing the wrong, right? उनको ना, मतलब ना, नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ हाँ, Hmm. because by protecting somebody who's, or sometimes many times, a proven offender and a repeat offender, you Hmm. are also violating the law. You are also committing that crime. ना? You are abetting that crime, right? Exactly. इसीलिए आप Hmm. उनको बढ़ाव दे रहे हैं. From that on, Hmm. these people, what is this unsafe society? Why do you say unsafe space? It is not that, where that incident happened, exactly. It is not about the time and the location, right? Hmm. It is about your mindset, your attitude ki, I can do this and nobody will touch me, will not question me, will not complain against me. Exactly. So I think na, that is what uh, should be. Of course, it's being recognized. It should be changed and all that. But that will not come. People and Hmm. dear friends, our community members like Yashika need not carry that responsibility, or you may not Hmm. consider it a burden, right? And you say that I am standing up for myself, and thereby, if others benefit, great and okay. बट एक्चुअली स्पीकिंग, जो आपने किया वो ऑलरेडी कराना था Hmm. उनको, उन्होंने नहीं करा, इसीलिए आपको. एंड वर्स स्टिल, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग वेरी फंडामेंटली रिक्वायर्ड, वो आप लोग सिर्फ, आपको सिर्फ मना नहीं कर रहे थे, they were again harassing you, Exactly. they were harassing you for being who you are. Hmm. Then when you are asking for your fundamental right, and it's a need also, na? You can't stay forever in a guest house, right? Exactly. Yeah. Hmm. Even then they are harassing you. This is like double triple harassment, no? Exactly. Mm. Hmm. And Yashika, it's almost an hour and a half. It's also late for you and for others. Hmm. So matlab na, you may be tired also. So Hmm. we are going to almost end this. Okay. Yeah. Hmm. But any particular thing you would like to share, suggest, whatever, please feel free, Abhi. Hmm. Like लाइक बेसिक स्कूल्स वगैरह में लाइक जेंडर सेक्सुअलिटी और इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइक इसके अलावा भी जैसे कि एट्रोसिटीज पर कोई एक्ट स्पेसिफिक आना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई जेंडर माइनॉरिटीज और जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज पर कोई स्पेसिफिक एक्ट गवर्नमेंट लेकर आए जो कि प्रिवेंशन होगा एट्रोसिटीज अगेंस्ट जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज ऐसा कोई स्पेसिफिक आएगा और बीएनएस में जिस तरीके से बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक है उसमें लाइक उसमें भी बाइनरी और जिस तरीके से उस तो लॉस को जेंडर न्यूट्रल थोड़ा करना जरूरी है जेंडर न्यूट्रल का करना बहुत जरूरी है उसमें भी जो किस तरीके से वो जो 377 था उसको पार्शली हटाया गया था तो एक पार्ट था जो कि बीएनएस में अभी नहीं है जो कि होना जरूरी था क्योंकि अगर कोई क्राइम किसी गे मैन के साथ होता है तो फिर वो प्रॉब्लम फिर क्योंकि
किस बेसिस पे वो फिर फाइल करेगा अगर एफआईआर करानी है तो फिर, क्योंकि बीएनएस में ऐसा कुछ है ही नहीं, बीएनएस में प्रॉब्लमेटिक है बीएनएस। तो उसमें और ट्रांस इंक्लूसिव जो क्रिमिनल लॉ है, उनका जो क्रिमिनल ऑफेंस का जो एक ड्यूरेशन है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। वो 6 महीने से 2 साल में क्या होता है, उसको उसको एक्सटेंड करके 10 टू जितना बाकी है, क्राइम इज अ क्राइम, उसको जेंडर से वो नहीं करना चाहिए। लाइक किसी के साथ कोई हीनियस क्राइम होता है तो फिर उसको वैसे ही लाइक लॉ के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। और टीचर्स के लिए तो लाइक एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस, यूजीसी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक प्रॉपर गाइडलाइंस निकालनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी गाइडलाइन निकल लेकर आए कि जिसमें हॉस्टल से लेके किस तरीके से उनको सीट्स एलोकेशन होना है, कैसे उनके लिए रिजर्वेशन वर्क करेगा। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि सेल कैसे बनेगा। हम कैंपस एम्बेसडर बना सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो आगे बढ़ के और वर्क करें इंक्लूसिव ये कैंपस को और इंक्लूसिव बनाने के लिए। और स्पोर्ट्स पे किस तरीके से इंक्लूसिवनेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में उनको क्रिएटिविटी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स की बोलने की नहीं तुम ट्रांस तुम स्पोर्ट्स, जैसे कि आजकल एक पॉलिटिक्स भी चल रही है इंटरनेशनल की स्पोर्ट्स को लेकर कि ट्रांस है, बायोलॉजिकल मेल, ये वो। तो उस तरह के सिनेरियो को, कॉन्सेप्ट को लेकर के बात होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उनको आगे आने के लिए इनकरेजमेंट होना चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल अलग से, जैसे बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए, और उनको ऐसी एक उनको भी ऐसी एक कमेटी ऐसे बनानी चाहिए जिस जो ट्रांस इंक्लूसिव हो, उनकी हो, उनको प्रोत्साहित करती हो स्पोर्ट्स के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल लाइक ये एक फीडबैक है जो होना इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली का काउंसलिंग। फैमिली काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली काउंसलिंग। अभी कल परसों ही न्यूज हम पढ़ रहे थे कि एक लड़के ने क्या, एक ट्रांस के से शादी करने का वो था, तो उस तो क्या वो फैमिली ने सुसाइड कर लिया। मम्मी पापा दोनों ने सुसाइड कर लिया। अभी कल 1-2 दिन पहले की न्यूज थी, तेलंगाना साइड की, कर्नाटका तेलंगाना ऐसी कुछ। तो तेलंगाना, हाँ हाँ। हाँ तेलंगाना, तो वो मतलब इस लेवल पे मतलब एक्सेप्ट करना उन पे उनको इतना टफ लग रहा था कि वो इजी लग रहा था। अब ये मेंटालिटी को हैंडल करने के लिए भी काउंसलिंग, फैमिली का काउंसलिंग जरूरी है, जो कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को जो है काउंसलिंग किया जाए फैमिली सिबलिंग्स को, क्योंकि क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सबसे पहले घर से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले सारी चीजें प्रॉब्लम घर से शुरू होती है। तो वो चीज फिर एटलीस्ट, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कोई भी पेरेंट्स निकाल नहीं सकता है डायरेक्टली टीजी एक्ट के अंडर। वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर वो एडल्ट है, एडल्ट नहीं है तब भी पेरेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट घर से नहीं निकाल सकते, कोई विलेज से नहीं निकाल सकता आपकी जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे, कि अगर कोई ट्रांस है तो अपने कहते हैं ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता, कि कि ऐसे बोलने लगे कि फैमिली की तुम ट्रांस हो ये हो तो घर से बेदखल हो जाओ, ये ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट बना हुआ है, अगर करेगा तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो उस पे बहुत स्ट्रिक्ट भी है। और लोगों को फिर इसका अवेयरनेस भी जरूरी है। इस एक्ट का अवेयरनेस होगा तब जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा। और अब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ग्राउंड्स पे इसको। तो ये है, ये मेरा सजेशन है। Yeah, fabulous. Okay, actually, many times there are attempts, and not just attempts, lots of efforts all over India to sensitize lawyers, judiciary, police, government officials, and all. Very, very vital. But you know what, as you said, teachers, people who influence or come in contact with children,
especially small children. And we know that we queer trans people consciously, subconsciously understand ourselves much earlier than we find community support, whatever and stuff. And the sooner we understand ourselves, unfortunately, it becomes unsafe for us. कि हाँ वो पूरा आपने जो बोला, the violence against us, the suppression, all that starts many times in our so-called biological, our natal homes. So sensitizing teachers is so vital. Of course, there are many children who do not go to school. We understand that very well. But yeah, and some way of regularly meeting different families, right? Especially at least where there are no. ये नहीं आपने जो बोला ना, they should not be that some violence happened and then you do, a reactive kind of influence. One thing. प्लस ऑल्सो जो और भी बहुत अहम है, व्हाट यू सेड यशिका, एंड वी ऑल्सो नो कि ना आप लोग ना सेंसिटाइज करो डॉक्टर्स को, टीचर्स को, पुलिस को. नो नीड टू सेंसिटाइज आवर कम्युनिटी यार बाबा. When we talk sensitization, when we even mention the word sensitization, many people, and I keep again giving last year or sometime, no, 2-3 years ago, a queer friend and I, amidst all this lockdown and doing relief work and all that, one Sunday morning we were asked to, join a meeting with a specialist mental health educational, private one, not NIMHANS. Okay, North Karnataka based. Okay, and when we talking, regularly when we say sensitization, we think, I mean, what we mean is obviously we sensitize people, especially we all know that health is repeatedly sensitization of healthcare providers of all, not only doctors, of counselors, of nurses, of technicians, of staff. Everybody is so important because one of the worst systemic exclusions and violence and harassment happens with the healthcare providers. Okay. Exactly. When we mentioned sensitization, we were again initially surprised and then also almost wanted to laugh. We thought that sensitization means they will sensitize our community. Okay, and we were like, what are you going to sensitize our community about? And who? And why? By whom? When we say they didn't have an answer to that. Oh no, sensitize about mental health. I said, Baba, we all have mental health issues. We need mental health care support. There's no need to sensitize about the importance of health care or to understand. We need to sensitize you people because we are not able to seek that so healthcare which is necessary for us, which is our basic right, okay, and entitlement. So they were shocked. They were feeling human. Some of them were, I mean, that just shows the audacity, the arrogance that they have. कि ना हम सब कुछ जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हो, अपने बारे में भी नहीं जानते हो, अपने बारे में पड़ेगा तुम्हें. Hate, okay, people who are completely ignorant and deliberately not wanting to understand our community are going to sensitize us, it seems, about our joke. It was the stupidest joke which I heard. Okay, we are telling in so many ways. Oh no, we will counsel. Who? What are you going to counsel when you don't know our community? No? Then we asked, what do you know about? Oh, there's LGBT. So what does LGBT mean to you? What does lesbian mean to you? This is not about lesbian means two women, two men, whatever. Lesbian means so many things, boss. Don't say LGBT community, first of all, actually. Okay, that first of all, that is very again exclusionary and very reduction. The more we were talking to them, the lesser they wanted to understand because they knew that they were wrong and we were right. It was not even to
point out their mistakes, okay? To just tell them. So we said, this 1.5 hours which we are spending with you, you please consider this itself as a beginning to the sensitization, na? कि आप फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी का गला खराब है, मतलब रेगुलरली इट इज नॉट ओके, they come to some ENT specialist, okay? If you are an ENT specialist, you are supposed to know what to do, na? Exactly. Otherwise, mental health में तो it is worse than giving wrong treatment or unnecessary treatment or wrong medicines, no? You are with our mind because you don't know what we are, who we are, ना? कि आप लोग सोचते हो कि ट्रांस मतलब LGBT, बस LGBT क्या है वो. I have repeatedly seen this in so many places. Okay, इंटर्न्स आते हैं, लॉ स्टूडेंट्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं हमारे पास कि ना आप लोगों को अवेयरनेस देना है. ओके फाइन, लीगल अवेयरनेस दो. हमारे कम्युनिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? डू यू नो हाउ oppressive the laws are? I mean, what you're saying is so again crucial. We are asking for separate laws because every law supposedly gender just is only again for cishet women, right? It is not for dressing. If you try to put us in those laws, you will not address our thing properly, address our needs, our issues, our realities, because most people who are invited to those clarifications on these laws are again often Savarna cishet women. Okay. Exactly. And usually the decision makers are Savarna cishet men. Okay. So what even are you अपना इतना बिल्कुल वो समझना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते कि we say no, nothing about us without us. That is not just a slogan, boss. That is in a nutshell trying to कि ना हमारा इसमें हम जानते हैं, तो आप you either do something with us for us or shut up ना, जो messy situation और create मत करो. I think also, which is why you were repeatedly saying na, okay, whether it's a body or a cell or a law or a policy, it's better that they have it separately for us. नहीं तो हम लोग ना in that whole the thing we will be lost. Locked, exactly. Lost and invisibilized and और यही बोले ट्रांस लोग आने दो तब सेल तब मतलब आप लोग क्यों सोचते हो कि नहीं है ऑलरेडी कि हाँ बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच यशिका. सॉरी आई वेंट. It's been such a privilege, honor, what do you say, exciting and such a pleasure talking with you, listening to you, and just lots of love and power and Jai Bhim. सतरंगी सलाम आपको. आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं. हाँ बिल्कुल. All stay connected and okay. So as we spread queer trans joy or affirmation, all we are asking is be humane, because if you're human, being humane is again very still. Yeah. So exactly. who may not understand Antarlingi, Aravani, LGBTQIAP plus whatever, na. If you can respect us as human beings, that's a lot, at least to start with.
ओके। एग्जैक्टली। हाँ, हम ये सब हमें भीख में नहीं चाहिए, लेकिन हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें उतना भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता। एंड दिस इज लाइक अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन अनफॉर्चुनेटली ना। एग्जैक्टली। So that is what na we have not come from another universe or this thing. हाँ, ठीक है। All right, again thank you थैंक बहुत यू सो प्यार मच, हाँ, फॉर कनेक्टिंग मी। बहुत बहुत थैंक यू। और लाइक यही है, बहुत अच्छा लगा कनेक्ट करके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक शेयर कर पाए। मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की, पॉइंट्स। आपको भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं पता लगी होगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। ऐसे ही लाइक एक दूसरे से सीख सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। और नॉलेज तो ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। और ये होना चाहिए, लाइक बात होनी चाहिए जेंडर और सेक्सुअलिटी पे ओपनली, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं भी हो। आई थिंक इट्स अ नाइस। yeah, oh yes, thank you. Is caring and healing also. Yes, I agree. Okay. So all the best for the rest of the year and new year. Okay. थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। Okay, bye, take care. टेक केयर, And बाय, गुड नाइट। good night. Yeah, I will share and tag this reel. Okay. Okay. श्योर, Bye. बाय, All, टेक केयर। you too. Bye. Thanks.